Today I will teach you about arithmetic progression. First of all, I will teach you about the sequence. Sequence. As we know, sequence is a collection of terms. It is a collection of terms. Collection of terms. Bounded by some definite pattern, or rule. Arithmetic progression is also a type of sequence. Here, type of sequence, that is arithmetic progression, which is in short known as AP. Second is geometrical progression, which is in short known as GP. Third is harmonic progression, which is in short known as HP, that is harmonic progression. Here, arithmetic progression. It is the arithmetic progression which I will told you today. Now, first of all, I would like to tell you about arithmetic progression. Arithmetic progression. As we know, it is also a sequence. So, a sequence is called arithmetic progression if here first term is fixed, and next term can be obtained by adding some fixed term known as common difference, of AP. Common difference of AP. As 4, 6, 8, 10. This is an AP. It is an AP. Here first term is 4 and next term is obtained by adding some fixed term. That is, here common difference is 2. If we add 2 to first term 4, we would got 6. Similarly, if we add 2 to second term, we would got our third term. Similarly, for fourth term, we have to add 2 to the third term. In this way, we observe that if we are adding some fixed term to its previous term, then we would got our next term. So, we can say if we have a sequence in such a way that next term can be obtained by adding some fixed term to its preceding term, then this type of sequence is known as common difference. For example, 5, 10, 15, 20. Here first term is 5. Second term is obtained by adding 5 to the previous term. We would got 5 plus 5, that is 10. 10 plus 5, that is 15. 15 plus 5, that is 20. 20 plus 5, that is 25. In the same way, we can say हमारे पास एक फिक्स टर्म दी हुई है. अगर इस फिक्स टर्म के अंदर हम दूसरी फिक्स टर्म कोई भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो इस प्रकार की जो सीक्वेंस
Now standard form. Now standard form of an AP. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी कि आखिर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है किस रूप में अक्सर हमें दिखाई देती है। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास ए मान लिया हमने, और नेक्स्ट टर्म तब आई जब हमने एक फिक्स टर्म ऐड किया। उस फिक्स टर्म को हमने डी का नाम दिया। इस डी को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब इस सेकंड टर्म में फिर से हम डी ऐड कर देंगे। अगर इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस डी दैट इज a प्लस 2d। अब इसके अंदर फिर से हम d ऐड करें तो क्या आएगा, a प्लस 2d प्लस d दैट इज a प्लस 3d। In this way, if we obtain the sequence where first term is fixed and we are adding d to its preceding term to obtain the next term, so this type of sequence obtained would be arithmetic progression. Here a is the first term of AP. A is first term of AP. D is common difference. Here D is common difference of AP. D is common difference of AP. D is common difference of AP. That is, we can say if it is your first term, it is your second term, it is your third term, then how can we explain? अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो हमारे पास यहाँ d है ही नहीं। हम ये कहें कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या दिया गया है, a प्लस 0d 1 है तो यहाँ 0d। अगर 2 आप कह रहे हैं तो a प्लस 2 माइनस 1d दैट इज 1d। अगर थर्ड टर्म के बारे में बात करें तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d दैट इज a प्लस 2d। a प्लस 3 माइनस 1d a3। इसी प्रकार से अगर हम बात करें nth टर्म की, nth टर्म that is 15th term, 14th term, in this way we have nth term which is also known as general term of AP. nth term it is the nth term or also known as general term of AP. तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम जनरल टर्म कैसे बनाएंगे, क्या होगा हमारे पास जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे, अगर a3 है a प्लस 3 माइनस 1 d, a2 है a प्लस 2 माइनस 1d, तो an क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। इसी an को ही हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। इसी an को ही हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। जनरल टर्म और nth टर्म ओ एन AP, जनरल टर्म और nth term of an AP which is written as an or in some book Tn। फार्मूला क्या है इसका, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। Here a is the first term, here a is the first term of AP, n is the number of terms, number of given terms, जो भी टर्म दी गई हो वो नंबर ऑफ टर्म। d is the common difference, d is the common difference, d is the common difference। Now how can we define common difference, how can we define common difference, how can we define common difference of an AP? Common difference which is write down as d equal to a2 minus a1 equal to a3 minus a2. In the same way you can proceed it as an minus 1. So in general form an d can be write down as an minus 1, d can be write down as an minus 1, or you can say common difference is
you can say common difference is difference of any term, it is the difference of any term to its preceding term, So in general, d equal to an minus 1. D can be write down as an minus 1. It is the nth term, it is n minus 1th term. कहने का मतलब अगर ये 10th टर्म है तो ये 9th टर्म, ये 8th टर्म है तो ये 7th टर्म, 6th term then it is 5th term. In this way we can define common difference of the given AP. Now we have to calculate or we have to do some sums related with arithmetic progression. Is the given sequence NAP? हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास अगर ये सीक्वेंस दी गई है कि an equal to n square plus 1, तो क्या इस प्रकार के सीक्वेंस AP बनाएगी? चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए इसके सॉल्यूशन में चल रहे हैं हम, मान लीजिए n की वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट करते हैं ताकि हम ये देख लें इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो हमारे पास कौन सी सीक्वेंस आएगी? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस वो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गई? 2 के इक्वल। अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी अपने पास? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। इसी प्रकार से अगर n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a3 क्या है? a3 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो कहने का मतलब जो सीक्वेंस आई, therefore सीक्वेंस इज एज क्या है? सीक्वेंस पहली टर्म तो हमारे पास 2 आई, सेकंड टर्म हमारे पास 5 आ गई और थर्ड टर्म हमारे पास 10 आ गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 10। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये भी है, नहीं तो नहीं है। अगर हम यहां चेक करें 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। लेकिन 5 और 10 के बीच में चेक करें तो यहां कॉमन डिफरेंस हो गया 5 का। तो कैसे मैथमेटिकल हम एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज़ a2 minus a1 equal to 5 minus 2 equal to 3, but a3 minus a2 equal to 10 minus 5, that is 5. Here both of these are common difference, but it is not equal. Here a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so it is not an AP. ये हमारे पास सीक्वेंस तो है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दी गई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है या नहीं करती है। इसके बेसिस पर, कॉमन डिफरेंस के बेसिस पर। अगर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम हो तो एपी बनेगी, सेम नहीं होगा तो एपी नहीं बनेगी। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स इस पर बेस हम लेते हैं जो कि nth टर्म को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहां 15
7 का कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं 22 29, और हमने ये कह दिया कि फाइंड 20th term of given sequence ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, इस सीक्वेंस की हमें 20th टर्म निकालनी है। तो इसके चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो हमें इतना पता है कि हमारे पास an का जो फार्मूला होता है वो a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d है, और हमारे पास यहाँ 20th टर्म निकालनी है। अगर n की जगह 20 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a plus 20 minus 1 into d, यानी a plus 19d हमारे पास आ जाएगा, a plus 19d आ जाएगा। और सीक्वेंस हमें दी है 15 22 29, ये सीक्वेंस हमारे पास है, और इसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जहां a की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ सेम डिफरेंस लिया है आपने, हर जगह 7 7 का डिफरेंस लिया है, तो a p है। तो d की वैल्यू क्या है, यहाँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर लोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कितना है 22 minus 15 दैट इज 7। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ 15 है जो कि a की वैल्यू कहलाती है, कॉमन डिफरेंस d जो कि 7 दिया हुआ है, तो a की जगह अगर हम 15 लगा दें और d की जगह अगर हम 7 लगा दें तो हमारे पास 20th टर्म आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आता है 15 plus 19 7 जा 133, 19 7 जा कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 6 13, तो 19 7 जा 133, 133 plus 15 कितना हो जाएगा 148। तो इस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि अगर इसी प्रकार से सीक्वेंस चलेगी तो इस सीक्वेंस की जो 20th टर्म होगी, इस सीक्वेंस की जो 20th टर्म होगी वो 148 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म। हाउ टू फाइंड missing terms of a। आखिर मिसिंग टर्म कैसे निकालते हैं? कंसीडर फर्स्ट टर्म हमने मिस कर दी, सेकंड टर्म हमने मिस कर दी, थर्ड टर्म दिखा दिया 15, फोर्थ टर्म ले लिया हमने 20, और ये वाली टर्म नेक्स्ट टर्म भी हमने चलो मिस कर दिया। अब मैं कहता हूं कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ ए, फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ ए। इस एपी की मिसिंग टर्म हमें निकालनी है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म भी मिसिंग है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये भी मिसिंग है। तो एक बात हमें दिखाई दे रही है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 15 है, हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म हमारे पास 20 है, फोर्थ टर्म 20। तो थर्ड टर्म का क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू an equal to a plus n minus 1 into d। in this way we can say a3, अगर n की जगह 3 लगाएंगे तो a plus का 3 minus 1 that is 2। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगी a plus 2d। तो अगर थर्ड टर्म 15 दी है, इसका मतलब हमें दिया हुआ है a plus 2d equal to 15। इसी तरह से फोर्थ टर्म हमें 20 दिया हुआ है, फोर्थ टर्म का मतलब a plus 3d equal to 20, a plus 3d equal to 20। तो इस प्रकार से ये दो इक्वेशन मेरे पास है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सॉल्व इट बाय एनी ऑफ अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए अलजेब्रिक मेथड लगाते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ a को एलिमिनेट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। a से a यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2d minus 3d that is minus d। यहाँ क्या बना 15 minus 20 minus 5। तो in this way we can say value of d is 5। d की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 5, d की वैल्यू 5 हो गई।
डी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर इक्वेशन नंबर 1 में d इक्वल टू 5 लगा दे, लगाइए a प्लस 2d इक्वल टू 15 था, और अगर d की जगह हम 5 लगा दें तो a प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो a प्लस 10 इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और d की वैल्यू 5 आ चुकी है। a और d हमारे पास पता चल चुका है। तो चलिए अगर a और d हमें पता है तो क्या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म नहीं निकाल पाएंगे? चलिए निकाल। a का मतलब फर्स्ट टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि a के बराबर है, और कितना दिया है 5, फर्स्ट टर्म आ चुकी है तुरंत। अब हमें निकालना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मतलब a2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? a प्लस d, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और कॉमन डिफरेंस d कितना है? वो भी 5 है। तो इस तरह से सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 10। दो मिसिंग टर्म हमने निकाल ली। इसके बाद हमें देखनी है ये फिफ्थ मिसिंग टर्म। तो a5 का क्या फार्मूला होगा? a प्लस 4d। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और d की वैल्यू भी हमारे पास 5 है। a भी 5 निकाल चुके हो आप, और d भी 5 निकाल चुके हो, जस्ट पुट द वैल्यू। तो 5 प्लस 5 फॉर द 20 दैट इज 25। इस प्रकार से इन मिसिंग टर्म को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या सीखा आपने? मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे ये सीखा आपने। क्या बताया? फर्स्ट टर्म आपके पास है a1, सेकंड टर्म a2, ये दोनों मिसिंग है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ टर्म आपको दी गई है। फिफ्थ मिसिंग टर्म आपको ये भी निकालनी है, ये भी मिसिंग टर्म है, ये भी निकालनी है। केवल थर्ड और फोर्थ टर्म दी गई है। तो कहने का मतलब इन मिसिंग टर्म में से कोई सी दो मिसिंग टर्म आपको दी गई है, कोई सी दो मिसिंग टर्म। तो बड़े आसानी से आप इस फार्मूले का यूज करते हुए, इस एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, या किसी अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हुए a और d अगर निकल आएगा तो a और d के ऊपर ही सारा का सारा ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड करता है। यहाँ आपको थर्ड टर्म दे रखी थी, थर्ड टर्म 15 है, तो थर्ड का मतलब a प्लस 2d 15 है। फोर्थ टर्म 20 है, फोर्थ का मतलब a प्लस 3d वो आपका 20 के इक्वल है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो a और d की वैल्यू आ गई। इस a और d की वैल्यू को हमने इस a1, a2, a5 में पुट कर दिया। a1 का मतलब a होता है, तो जो a की वैल्यू है वही फर्स्ट टर्म आ गई। a2 का मतलब a प्लस 1d होता है, तो a और d की वैल्यू रख दी, सेकंड टर्म तैयार। a5 का मतलब फिफ्थ टर्म होता है, तो a5 का क्या फार्मूला? a प्लस 4d। तो यहाँ भी a और d की वैल्यू हमने रख दी। तो इस तरह से हम अपना काम कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं मिसिंग टर्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो कि है nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम एंड। अब तक हमने स्टार्टिंग से सीखा nth टर्म निकालना, अब लास्ट से nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एनी गिवन ए। कोई भी गिवन ए दे रखा हो, उसमें nth टर्म स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एंड का। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एरे पी an equal to l minus n minus 1 here l is the last term, l is the last term of a, l is the last term of a, और इसी लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। इसी लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। n हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ गिवन टर्म्स, नंबर ऑफ गिवन टर्म्स, n को बोलते हैं नंबर ऑफ गिवन टर्म्स। d क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस, d आपका है कॉमन डिफरेंस ऑफ a, कॉमन डिफरेंस ऑफ a, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ a। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी हो तो इस तरह से, जैसे अगर हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है 15,
20, 25 और लास्ट अपने पास 100 है। लास्ट हमारे पास 100 है। तो मैंने कहा फाइंड, अगर ये सीक्वेंस है, if this is the sequence, मैंने कहा फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, फ्रॉम एंड ऑफ एपी। जो एपी दी है उसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 15। एयर सॉल्यूशन अगर निकाले, ए की वैल्यू 15 है, लास्ट टर्म को एल बोलते हैं, तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ? 100। अगर कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें तो कॉमन डिफरेंस आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म हमारे पास 20 है और फर्स्ट टर्म 15 है, तो 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5। तो ए हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, तीन चीजें हमारे पास। तो हम क्या निकालेंगे? nth टर्म फ्रॉम एंड, दैट इज an। हमें निकालना है an, तो फार्मूले में चलिए वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? फिफ्थ टर्म है तो n की जगह 5 लगा दो। लास्ट टर्म कितनी है? 100 है, तो l की जगह 100 लगा दो। नंबर टर्म कितनी है आपने कही? 5, तो 5 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना आपने यूज किया है यहाँ? 5, तो d की जगह 5 यहाँ यूज करें। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं लास्ट से जो फिफ्थ टर्म आएगी वो क्या होगी? 5 माइनस 1 दैट इज 4। अगर 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आएगा? 4 5 20, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो इस तरह से लास्ट से अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो वो 80 आएगी। चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अगर हम एक दूसरे तरीके से देखना पड़े हमें तो वो भी हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास अगर सीक्वेंस दी गई है जैसे 15, 20, 25 जो अभी आपने ली, और लास्ट वाले सीक्वेंस आपके पास 100 है। अब लास्ट से हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। एक काम करते हैं, इस सीक्वेंस को ही हम अपोजिट कर देते हैं, इस सीक्वेंस को ही हम उलटते हैं। तो जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और इसी प्रकार से चलते जाएंगे। तो क्या लास्ट से पहले वाली टर्म कितनी होगी? 5 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ 95 होना चाहिए, तो 100 हो गया, ये 95 हो गया, और इसी प्रकार से आप चलते जाएंगे तो आपका 25, 20, 15, क्या इसी प्रकार की सीक्वेंस नहीं बनेगी? और अगर ऐसा है तो हम अब लास्ट से जो फिफ्थ टर्म आप कहना चाह रहे थे वो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95 माइनस 100, और अगर 95 में से 100 को हम माइनस करें तो कितना आएगा? -5, और नंबर टर्म कितना है हमारे पास यहाँ? 5। ये हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। लास्ट से कहा था, हमने उलट के उसको स्टार्टिंग में चेंज कर लिया, और हमें फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से इसका फार्मूला पता है कि a प्लस 4d अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ an। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपने इस लास्ट को स्टार्टिंग में चेंज कर दिया, तो an क्या है? a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 5 लगा दीजिए, 5 माइनस 1 4, तो a प्लस 4d आ गया, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 100 है, प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है? -5, तो 100 प्लस माइनस माइनस 4 5 is 20, 100 minus 20 is 80, 100 minus 20 is 80। तो यहाँ भी आपके पास 80 निकला होगा और उधर भी आपके पास 80। तो कहने का मतलब ये है, फार्मूला कोई सा लगाओ आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के दो मेथड आपको बता दिए हैं। चाहे तो आप इसी सीक्वेंस को उलट के कर लीजिए तब भी वही आएगा, या सीधा करते हैं तब भी आपके पास वही सॉल्यूशन आएगा। चलिए